62. ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಸಂಸಾರವು ಕ್ಷಣಸಃ ಕ್ಷೀಣಿಸದು ಸಂಸಾರವು ಕ್ಷಣಸಃ ಕ್ಷೀಣಿಸದು ಪರದ್ರವ್ಯದಿ ಮಮತೆಯು ಇರುವರೆಗೆ ಪರದ್ರವ್ಯದಿ ಮಮತೆಯು ಇರುವರೆಗೆ ಭವಭಾರವು ತಿಲಸಃ ಕ್ಷೀಣಿಸದು ಭವಭಾರವು ತಿಲಸಃ ಕ್ಷೀಣಿಸದು ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಶುಭ ಭಾವವಹಿತವೆಂದರಿವರೆಗೆ ಹಿತವೆಂದರಿವರೆಗೆ ಸಂವರ ಭಾವವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಂವರ ಭಾವವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಭಾವನೆ ಬಾರದವರೆಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಭಾವನೆ ಬಾರದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಣವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಕರ್ಮದ ನಾಶವು ಆಗದವರೆಗೆ ಧರ್ಮದ ನಾಶವು ಆಗದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಣವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ವಾಣವು ಆಗದವರೆಗೆ ಆ ನಿರ್ವಾಣವು ಆಗದವರೆಗೆ ದುಃಖದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದುಃಖದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದವರೆಗೆ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದವರೆಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವು ಅದು ಆಗದವರೆಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವು ಅದು ಆಗದವರೆಗೆ ತನ್ನದು ಒಳಿತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನದು ಒಳಿತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಅದರಿ ಮೊದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದರಿ ಮೊದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕು ನಿಜ ಆತ್ಮತತ್ವವ
ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಜಾತ್ಮತತ್ವದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಕರ್ಮಜಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮಜಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲೇಬೇಕು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ. ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಸಮಕಿತವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಯ ವ್ರತವು. ಸಮಕಿತವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಯ ವ್ರತವು ಜಪ ತಪವೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಿರವು. ಜಪ ತಪವೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಿರವು. ಸಂಸಾರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರತೀಕವಿವೆ. ಭವಸಾಗರಕವು ಸಹಕಾರಿವೆ. ಭವಸಾಗರವು ಸಹಕಾರಿವೆ. ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಸಂಸಾರವು ಸಹ ಕ್ಷೀಣಿಸದು. ಪರದ್ರವ್ಯದಿ ಮಮತೆಯು ಇರುವರೆಗೆ. ಪರದ್ರವ್ಯದಿ ಮಮತೆಯು ಇರುವರೆಗೆ ಭವಭಾರವು ತಿಲಸಹ ಕ್ಷೀಣಿಸದು. ಹೃದಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇರುವರೆಗೆ ಮಂಗಲವು ವರವೀರ ಜಿನರಿಗೆ. ಮಂಗಲವು ಗುರು ಗೌತಮಾಂಗಗೆ. ಮಂಗಲವು ಶ್ರೀ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ. ಮಂಗಲವು ಚಿರ ಸಮಯ ಸಾರಕ್ಕೆ. ಮಂಗಲವು ನಿಜ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗೆ. ಮಂಗಲವು ಜಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಂಗಲವು. ಮಂಗಲವು ಜಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಂಗಲವು. ನಮೋ ಅರ್ಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ಉಪಚಾರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಕೆ ಸೌವಸಾವೂನಂ. ನಮಃ ಶ್ರೀವರ್ಧಮಾನಾಯ ನಿರ್ಧೂತಹೃದಯಾತ್ಮನೇ. ಸಾಲೋಕಾನಾಂ ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ಯದ್ವಿದ್ಯಾತರ್ಪಣಾಯತೆ. ಯದ್ವಿದ್ಯಾತರ್ಪಣಾಯತೆ. ದೇಶಯಾಮಿ ಸಮೀಚೀನಂ ಧರ್ಮಂ ಕರ್ಮ ನಿಕರ್ಷಣಂ. ಸಂಸಾರ ದುಃಖತಃ ಸತ್ವಾನ್ ಯೋ ಧರತಿ ಉತ್ತಮೇ ಸುಖೇ. ಸದೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮೇಶ್ವರಾ ವಿದುಃ. ಯದೀಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕಾನಿ ಭವಂತಿ ಭವಪದ್ಧತಿ. रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ। इसे 1900 वर्ष पहले आचार्य संत भद्रदेव ने मुनि धर्म का जो साधन है उस साधन के पूर्वभावी साधन का स्वरूप इसमें बताया है। धर्म तो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन जीव निज शुद्धात्मा की अनुभूति, निज शुद्धात्मा की
ज्ञान और निज शुद्धात्मा में ही स्थिरता करेंगे, तभी धर्म का आरंभ होगा। निज शुद्धात्मा की परिचय बिना निज शुद्धात्मा की श्रद्धा नहीं होगी। निज शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान के बिना निज शुद्धात्मा में लीनता रूप चारित्र कहो या मोक्ष की साधना कहो या मुनि धर्म कहो, सब एक ही बात है। सम्यक चारित्र ही मोक्ष के लिए उपाय है। सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की साक्षात प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र ही वास्तव में धर्म है। सम्यक चारित्र ही मुनि दशा है। और शाश्वत रूप में स्वभाव में जो स्थिर है वे ही अरहंत देव है। लेकिन मध्य लोक में है, अनंत चतुष्टय में विराजमान है, समोसरण में विराजमान है, दिव्य ध्वनि आदि निकलते हैं, उसे देव कहते हैं। देव के तो लक्षण सर्वज्ञ और वीतरागी है। दूरवर्ती और सूक्ष्म पदार्थ को जाने बिना, दूरवर्ती और सूक्ष्म पदार्थ को जाने बिना महानता प्राप्त नहीं होता। और वो दूरवर्ती सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए वीतरागता परम आवश्यक है। राग से या ईर्षा मत्सर किसी भी विकारी भाव से ज्ञान में सूक्ष्मता आती ही नहीं। ज्ञान में सूक्ष्मता आने के लिए परिणाम में निर्मलता होना जरूरी है। परिणाम के मलिनता जब रहेगी, जब तक रहेगी, तब तक ज्ञान में सूक्ष्मता नहीं आएगी। उस परिणाम की निर्मलता को सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसे सदाचार कहेंगे। सदाचार कहेंगे। सदाचार के बिना, सदाचार माने खान पान की, योग्य अयोग्य की विवेक रखना, अयोग्य का त्याग करना, ये सब है। लेकिन उस सदाचार से आत्मानुभूति का या आत्मा और देह की भिन्नता का परिचय होने की क्या संबंध क्या है, ऐसे प्रश्न पूछने पर देह और थोड़ा गंभीरता से सुनना, देह और आत्मा के बीच जो अत्यंत अभाव है, देह और आत्मा के बीच अत्यंत पृथकता जो है, वो समझ में आने के लिए ज्ञान की निर्मलता चाहिए। वो ज्ञान की निर्मलता खान पान के योग्य अयोग्य का ज्ञान होकर अयोग्य का त्याग होने पर ही वो ज्ञान में योग्यता आती है। फिर से सदाचार जो बताते हैं, 5 प्रकार का अभक्ष का त्याग है, जिनदेव का दर्शन है, रात्रि भोजन का त्याग है। रात्रि भोजन में क्या है, और 5 प्रकार का या 22 प्रकार का जो अभक्ष बताया है, उस अभक्ष में क्या है और रात्रि भोजन में क्या है, और बिना गला पानी में, गला बोलते हैं, बिना छना पानी में क्या दोष है। बिना छना पानी में एक बिंदु इधर के व्यवस्थापक बार बार आपको हमको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें मालूम होना चाहिए। हमें उस बात का सावधानी नहीं रहेगी तो जिनवाणी का एक बात भी समझ में नहीं आएगा। ये तो निश्चित है। नियम एक दूसरे के लिए अलग नहीं रहते, सबके लिए एक ही रहते हैं। बिना छना पानी में क्या दोष है, सबको पता है। एक बिंदु पानी में कितनी जीव है? हाँ, 36,000। हाँ, देखिए मूलाराधना में कहते हैं
जो एक बिंदु में जीव है ना, एक बिंदु में, वो तो स्थूल हुआ, हम जो गणित कह दिया वो। एक बिंदु में एक ऐसे क्या बोलते हैं, बूंद बूंद में, एक बूंद में जो जितनी जीव राशि है वो सब राई जितना देह धारण करेंगे तो भरत क्षेत्र में नहीं समाएगा। राई जितने देह हरेक जीव को मिल गया तो भरत क्षेत्र में नहीं समाएगा। ऐसा आगम आधार है। ऐसे कैसे हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन कंदमूल में कितने जीव है बताए ना, एक सुई उसमें डालना और ऐसे ही निकालना, सुई के ऊपर भोंती नहीं, सिर्फ टोक पर असंख्य निगोदी शरीर है। क्या है? असंख्य निगोदी शरीर है। और एक शरीर में जितने कितने जीव है? अनंत जीव है। अनंत माने कितने? इतने काल तक, अनादि से इतने काल तक जितने जीव सिद्धशिला पहुंच गए, सिद्धालय पहुंच गए, उससे अनंत गुणित जीव एक शरीर में है। तो कैसे है? जितने सिद्धालय पहुंच गए जीव, हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। तो अनादि से कितने 6 महीने हो गए, कितने 608 हो गए? जितने सिद्धालय पहुंच गए उससे अनंत गुणित जीव एक निगोदी शरीर में है। यही प्रश्न अब हम एक कोटा कोटि सागर के बाद किसी तीर्थंकर को पूछेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब है एक निगोदी शरीर कभी भी खाली नहीं होगा। जितने भी काल बाद हम तीर्थंकर से प्रश्न करेंगे, प्रभु अब कितने जीव सिद्ध लोग पहुंच गए, एक निगोद के शरीर के अनंत आभार, ऐसा ही बताएंगे। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। देखिए, 3 काल के सिद्ध, भावी अनंत काल के सिद्ध भी एक अंश। तो कंदमूल का एक टुकड़े में, संपूर्ण कंदमूल एक आलू या प्याज में कितने होंगे? ये तो जैनियों के सभा है, इधर तो उसकी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जल की चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। कितने कितने कष्ट हो रहे हैं। भावी काल में हम जलकायक जीव के परवाह नहीं करेंगे। अब तो भावी काल में हम जल के बूंद के लिए तरसेंगे, बूंद के लिए। 3 लोक के सभी सागरों को पी जाने पर भी नारकी का दाह, तृषा कम नहीं होता, शमन नहीं होता। उतनी तृषा रखती है नारकियों में। तो 33 सागर काल प्रमाण उधर रहना पड़ेगा ना। 33 सागर काल जल का एक जीव में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, क्षुधा परीश, तृषा परीश, तृषा परीश के बारे में बताते हुए कहते हैं, तृषा का पीड़ा होने पर मुनिराज ऐसे विचार करते हैं, मैं इस तृषा के बाधा को दूर करने की विचार करूं तो जल का एक जीव पर अन्याय होगा। मैं इस तृषा बाधा को दूर करने का विचार भी करूं
तो जल का एक जीव को बाधा होगा, हानि होगा, उनका मरण होगा। कितने कितने पानी हम निरर्थक बहा देते हैं। जिस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगा, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगा। तो उस कपड़े धोने के लिए कितने पानी बहाते हैं, शरीर धोने के लिए कितने पानी बहाते हैं। शरीर ही नहीं मिलेगा, धोने के काम कहाँ है? शरीर ही नहीं मिलेगा। निगोद में स्वतंत्र शरीर कहाँ है? एक शरीराश्रित अनंत जीव रखते हैं। हमें सिर्फ निगोद जाने के लिए ही आतुरता है क्या? इधर आए किस लिए आए हैं? इधर माने गजपंथा नहीं, इस मनुष्य भव में किस लिए आए हैं? भव का अभाव तो शब्द से होगा, भव का अभाव। भव कहाँ है? अभाव कहाँ करना है? भव का अभाव करने के लिए इस मनुष्य भव मिला है, लेकिन भव का अभाव करने का कौन सा प्रयत्न हम कर रहे हैं? कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं? भव का अभाव अपने आप हो जाएगा। तृषा परीशह को कैसे जीतते हैं? मासोपवास करते हैं। उधर अनेक अनेक चर्चा है सर्वार्थ सिद्धि में। मासोपवास किए हुए है मुनिराज, 1 माह पर्यंत आहार के लिए नहीं आए। ग्रीष्म ऋतु के काल चल रहा है, भयंकर दाह हो रहे हैं अंदर। नगर में आते हैं, नगर में आने के बाद आहार की विधि नहीं मिलती, आहार की विधि नहीं मिलती। आहार की विधि नहीं मिलने पर, आहार की विधि मिलते तो जितना संतोष होता उससे अनंत गुणित संतोष हो रहा। फिर से संपूर्ण मुंह सूख रहा है, आग आग हो रहा है। मासोपवास किए हुए है, नगर में आहार के लिए आते हैं। वे हमारे गुरु है भाई, हम उनके मार्ग पर चलने वाले हैं ना, चलने का प्रण लेकर आए हैं ना इस भूमि। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय तू माँ गर्भ में था पड़ा। क्या लक्ष्य था? जिस समय तू माँ के गर्भ में पड़ा था तब लक्ष्य था शिवपुर जाने का। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गयो, चंद क्षण तेरे जीवन के रह गए। लक्ष्य क्यों भूल गए अपना? कितना है जीवन? चंद क्षण। चंद क्षण कब रहेंगे तब सोचना है, या अभी चंद क्षण ही है हमारा जीवन। जब जन्म आए, जन्म लेकर आए, माँ के गर्भ से इस भूमि पर आए, तभी से चंद क्षण ही रह गए हमारा जीवन। क्या हुआ? चंद क्षण रह गए। कितने है? क्षण ही है ना, साल भी क्षण में ही है। तो हम हिंसा से कितने दूर रह रहे हैं, रहने का प्रयास कर रहे हैं। भव संबंधी भावों का अभाव करने का प्रयास हम कितने कर रहे हैं? घर में कितने कर रहे हैं? स्वाध्याय करते समय कितने कर रहे हैं? पूजा करते समय कितने कर रहे हैं? अभी भजन बोले, हृदय मिथ्यात्व इरुवरेगे, भव भार तिल के समान भी कम नहीं होगा। तिल के समान। मेरे
मिल गया मनुष्य जीवन। कार्य कर रहे हैं। भगवंतों के दर्शन योग करा रहे हैं जीवों को। मंदिर निर्माण करने वाले, संस्था चलाने वाले स्वाध्याय का योग दिला दे रहे हैं, लेकिन करने वाले क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर क्या जवाबदारी है? देखिए, देव शास्त्र गुरु को हम जो नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, उससे वास्तव में उन देव शास्त्र गुरु का वंदन नहीं होता, स्मरण नहीं होता, गुण कीर्तन नहीं होता। तो कैसा होता है? कैसा होता है? उन्होंने जो देह और आत्मा का पृथकता बताया है, उस पृथकता को समझने के संपूर्ण प्रयास निरंतर प्रयास करेंगे। उस प्रयास के बल से हमारे ज्ञान में निर्मलता आएगी और वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होने की योग्यता रखती है। इसीलिए सदाचार के बारे में बता रही थी मैं। क्या? शो बिना छना जन काम न लेंगे। छना हुआ चलेगा ना? कितना भी ले सकते हैं क्या? हम तो शब्द पर अटके हुए हैं, पानी भी छान कर यूज कर रहे हैं, लेकिन छानने के बाद उस जीवाणु को कहाँ छोड़ रहे हैं? उस जीवों को कहाँ छोड़ रहे हैं? जिधर से पानी जिधर, हाँ, उधर ही डालना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। बुद्धिशाली जीव मनुष्य ज्ञानी हितेषु अधिको नराणाम ज्ञानेन हीन पशुभिः समान। ज्ञाने हितेषु अधिको नराणाम, अपने हित कैसा होगा इसका ज्ञान जिसे है उसे नर अर्थात मनुष्य बोलते हैं। ज्ञाने हितेषु, छाना हुआ पानी है, हम लोग को छान लिया, वो कितना घंटा शुद्ध रहता है? वो 45 मिनट्स मेरे को लगता है कि रहता है, ऐसा सुना है मैंने। अंतर मुहूर्त बताया है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट का 45 मिनट्स कहेंगे तो भी क्या गलत नहीं है। छाना हुआ जाता है, छाना हुआ शास्त्र में इसका उल्लेख है क्या? थैलिया का पानी छना हुआ होता है। कैसा पानी? थैलियों से जो आता है वो पानी छना हुआ हो बनता है क्या? बोतल का थैली। शास्त्र में है क्या वो? पानी छानने की विधि है, थैली तो हम हमारे बुद्धि से बनाया है। पानी छानने की विधि है। कैसे है? पात्र जो है उससे 4 गुना बड़ा चाहिए कपड़ा, ऐसा नियम है। जाड़ा भी होना चाहिए। लाइट ना सूर्य का प्रकाश नहीं है। देखिए, सब मालूम तो सभी को है, इधर बैठ के बताने जैसे कोई अनजान नहीं है। जाना हुआ भी कुछ प्रयोजन नहीं हो रहा है। कैसे करें? जितना कम उपयोग कर सकते हैं उतना कम उपयोग करना पहली बात। और छानने की विधि तो मुझे लगता है
कुआं वगैरह रहेंगे, कुएं से पानी निकालेंगे तो ही वो जीवंत रहेगा, जीव राशि, नहीं तो नहीं रहेगा। नल का पानी छानने का विधान ही नहीं है, नल का पानी छानने में ही नहीं आता। सब हमारा दुर्भाग्य से ऐसा हमारा जीवन चल रहा है। इस काल में आधुनिकता के मोह में हम हिंसा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और हमारा जीवन गंवाते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे। चरणान योग की तो बात दूर ही रहो, लेकिन सदाचार की जीवन, सदाचारमय जीवन हमसे नहीं बन पा रहा। सदाचार के बिना तत्व समझने की क्षमता ज्ञान में नहीं आता, ऐसा नियम है। सदाचार के बिना अभक्ष का त्याग, देव दर्शन, छना हुआ पानी को यूज करना, कंदमूल का त्याग करना, दिन में आहार करना। दिन में आहार के लिए क्या है, क्यों? सूर्यास्त होने के बाद अनंत अनंत वातावरण में अनंत 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 समोक्षण जीव अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद आत्म कल्याण के इच्छुक जीव क्या करता है? बस सामायिक करता है, जपाली करता है, मौन रहता है, आत्म साधना करता है, रात्रि जैसा बिताता है, अनादिकालीन अंधकार रूप मिथ्यात्व रूप बिताने के, मिथ्यात्व रूप अंधकार बीत जाने जैसे प्रयास में रात्रि को बिताता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व रूप रात्रि अपने आप बीत जाए ऐसा रात्रि को बिताता है। मुनिराज कितने सोते हैं, मुनिराज कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं? रयनी के पिछली छरढाला में लिखा है ना पंडित जी, क्या लिखा है? भूमाही पिछली रयनी, भूमि पर, हाँ, एक ही अंग पे सोते हैं, ऐसे सोएंगे तो ऐसे ही उठेंगे। स्वामी जी के प्रवचन में अनेकों बार आया है, पौन सेकंड नींद लेते हैं मुनिराज, पौन सेकंड, सुना नहीं आपने? पौन सेकंड नींद, पौन सेकंड, एक सेकंड पूरा नहीं, पौन सेकंड, पौन सेकंड समझते हैं हम, समझते, लेकिन वो लेकिन के लिए हमारा ही अपात्रता है भाई बहन जी, हमारा ही अपात्रता, लेकिन के लिए। मुनिराज का जीवन कैसा रहता है? मुनिराज इस जगत से, देह से, संयोग से, संयोगी भाव से कितने अस्पृष्ट रहते हैं। दिन में एक बार तो वैसा भव्य दिव्य मुनि जीवन का चित्रण एक बार तो हमारा स्मृति पटल में आना चाहिए। आएंगे तो ही हमारा जीवन मार्ग पर रहेगा, नहीं तो मार्ग पर से च्युत होने में देर नहीं लगेगा। कल एक प्रश्न आया था, क्या था प्रश्न आपका? प्रश्न याद है? इसीलिए मैंने कहा उत्तर कल बताऊंगी, आपको प्रश्न याद नहीं रहेगा तो भी मैं बताऊंगी। प्रश्न याद है इसलिए पूछा, नहीं बता रहे हो, इतनी सरल जीव है ना, सरलता तो होनी ही चाहिए जिनवाणी सुनने के लिए। उनका प्रश्न था, तीर्थंकर को तो कोई दीक्षा नहीं देते, तीर्थंकर भी किसी को दीक्षा नहीं देते, शेष लोगों को दीक्षा देते हैं या नहीं? दीक्षा लेने के लिए गुरु चाहिए या नहीं? दीक्षा देते हैं या नहीं? किसी से दीक्षा लेते हैं या नहीं? क्या है जैन दर्शन में? प्रवचन सार में चरणान योग सूचक चूलिका में
कुल रूप वय विशिष्ट श्रमण श्रमणರಿಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟನಾದ ಗಣಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೆಂದು ಹೇಳಿ प्रणतमेन अनुग्रहितनाभुवनु। कुछ भी नहीं समझ में आया। धुन अच्छी लगी, धुन अच्छी लगी, लेकिन धुन अच्छी लगी, धुन अच्छी लगी तो विषय पोषण हो गया, कर्णेंद्रिय का विषय पोषण हो गया। बात तो ऐसी ही है। कुल रूप वय विशिष्ट श्रवण, विशिष्ट श्रवण है उनका वय, वय समझते, उम्र, उम्र बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। कुल कैसा है? उच्च कुलोत्पन्न। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है क्षत्रिय कुल वाले राजा लोगों ने ही दीक्षा लेते हैं, राजा लोग और मंत्री लोग। श्रेष्ठी लोग तो साधना करते हैं घर में। जितने भी कथा आते, जिनदत्त श्रेष्ठी, अरहतदास श्रेष्ठी, सब श्रेष्ठियों का कथा आते हैं ना, वो तो घर में कर रहे हैं साधना। दीक्षा कौन लेते हैं? राजा लोग लेते हैं। हीन कुल वाले दीक्षा नहीं लेते। हीन कुल वालों को सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है, लेकिन दीक्षा क्षत्रिय ही लेते हैं। उधर कहते हैं कुल रूप, रूप कैसा है? सुंदर है। वो सुंदरता कैसे है वो बाद में चर्चा। रूप कुल वय विशिष्ट श्रवण, श्रवण श्रवणರಿಗೆ अति इष्टनाद, सभी श्रवणों के लिए अत्यंत इष्ट है। गणिगे, गणि, हाँ, संघनायक गणिगे। कोई दीक्षार्थी आकर नन्ननु स्वीकरिसेंदु, प्रभु अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। वो क्या करते हैं? तथास्तु बोलते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कहते। अक्षय चक्षु नाम का एक किताब पिताजी ने लिखा है, उसमें बुद्धदेव नाम का एक राजा दीक्षा लेता है। बुद्धदेव नाम का राजा कुंद कुंद भगवान के पास दीक्षा लेते हैं। कैसे लेते हैं? आ गए, दूर से ही सब राज्य वैभव त्याग के आ गए, हाथी घोड़ा पालकी क्या क्या था, दूर से ही आते हैं, नमस्कार करते हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती का आता है ना वैराग्य भावना, सबको पता है ना, उसमें है ना सभी। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वैराग्य भावना। राजरमावनितादिक जेर सतेर सबेर सलागे, मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग विशाले, घनेरे या विशाले। वो वज्रनाभि चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं। दीक्षा तो मुनिराज आचार्य देव नहीं देते। उधर प्रवचन सार में कुंद कुंद देव ने क्या लिखा? कुल रूप वय विशिष्ट श्रवण, श्रवणರಿಗೆ अति इष्टनाद गणिगे ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೆಂದು ಹೇಳಿ प्रणतमेन अनुग्रहितनाभुवनु। प्रणत होता है, अनुग्रहित हो जाता है। बस कपड़े छूट जाते हैं, वैभव छूट जाते हैं, ये देह मेरा है ऐसा भाव छूट जाते हैं। क्या है? सब परिग्रह, सभी पर वस्तु जैसे छोड़ने को आते हैं वैसे इस देह को छोड़ने नहीं आते, इसलिए वह देह रहता है, लेकिन देह उनके मन में किंचित भी नहीं है। नौकेयु जलदली विहरिसुತ್ತಿದ್ದರೆ, हमारे यहाँ है भजन मुनि के लिए। नौकेयु जलदली विहरिसुತ್ತಿದ್ದರೆ नियमदि दड़वनु ಸೇರುವುದು। नौका जल में विहार करते रहेंगे तो उस पार को पहुंच जाएगा, नौका में जल रहेंगे तो डूब जाएगा। वैसे ही मुनि
संसार में विहार करते हैं, लेकिन मुनि के अंतरंग में संसार माने देह रहेंगे तो भवसागर में डूब जाएंगे, तल में जाएगा, वो तल में जाएगा। ಜಲದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಯಮದಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರುವುದು, ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಿನಮುನಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಯಮದಿ ಮೋಕ್ಷವ ಬಂದುವ, ಮುನಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ मुनि है ना अर्थात मुनि का अवस्था क्या हो जाएगा, मुनि अवस्था कैसा है। और वैसे मुनि को गुरु मानने वाले जैनों का स्वरूप कैसा होता है हमें क्या पता है। हम सिर्फ भौतिकवाद के व्यामोह में अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। भौतिकवाद के व्यामोह में, पाश्चिमात्य संस्कृति के आकर्षण में, भारतीय संस्कृति को शांति के लिए वो अपना रहे हैं। पाश्चिमात्य देशों के लोग आंतरिक शांति के लिए भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम सुख के लिए पाश्चिमात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, आसक्त हुए हैं। एक बात आती है, जो महिला पति को बेचकर घर संपदा लेती है, वो न घर की रहती है न घाट की रहती है। जो महिला घर बेचकर पति को बचाती है वो सती कहलाती है। घर बेचकर, तत्वज्ञान के समीप आएंगे उस दृष्टांत से, घर बेचकर पति की रक्षणा करती है वो सती कहलाती है। कैसे? पर्याय है वो सती, अर्थात पत्नी की जगह है पर्याय। ध्रुव द्रव्य है वो पति की जगह है। उस पति के लिए जो पर्याय रूपी पत्नी पुण्य और संपदा का आस छोड़ जाती है वो त्रिलोक पूज्य हो जाती है। ध्रुव द्रव्य रूपी पति के लिए पर्याय रूपी पत्नी ने पुण्योदय से मिला हुआ, नहीं मिला हो तो उसके लिए आकर्षित तो है ही नहीं, उसके लिए प्रयत्न तो करती नहीं, लेकिन मिला हुआ सुख, पुण्य से मिला हुआ सुख संपदा को छोड़कर ध्रुव द्रव्य रूपी पति को समर्पित होती है तो त्रिलोक पूज्य हो जाती है। पर्याय त्रिलोक पूज्य है, ध्रुव द्रव्य पूज्य नहीं है। ध्रुव द्रव्य पूज्य नहीं है, पर्याय पूज्य है। पंचास्तिकाय के 9 नंबर के गाथा में पर्याय का स्वरूप बताया है। पर्याय क्या है? हर समय पर्याय ध्रुव को जो धारण करती है, ध्रुव को जो समर्पित होते हैं उसे पर्याय कहते हैं। हर समय की पर्याय, हर समय अर्थात हर एक पर्याय किसे कहते हैं? ध्रुव को अपने में धारण करती है, ध्रुव को अपने में धारण करती है, स्वयं ध्रुव को समर्पित हो जाती है, उसे पर्याय कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो दीक्षा कौन लेता है और कौन देता है, कैसे लेता है? क्षत्र चूड़ामणि में उपदेश का भी स्वरूप बताया, वपुषा निरूपयन्ति। वपुषा माने शरीर से उपदेश दे रहे हैं मुनिराज। भरिल जी के पूजा में आते, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, वही भाव है। उपदेश वचन से देना नहीं पड़ता। हिंसा का त्याग कब होता है? सदाचारमय जीवन जब आता है, हमारा सदाचारमय जीवन जब जीने का आरंभ करते हैं तब हमारा ध्यान सूक्ष्म होता है, तत्व को पकड़ने में समर्थ होता है, तत्व के लिए समर्पित होता है और तत्व को प्राप्त कर आनंदित होता है। पर्याय में स्वभाव की प्रकटता, पर्याय और द्रव्य की स्वरूप क्या है? द्रव्य के अस्तित्व में पर्याय के प्रवाहीपना है।
द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, वो तो समझते हैं आप। द्रव्य के अस्तित्व में ही पर्याय की विद्यमानता है और पर्याय से ही द्रव्य की सिद्धि होती है। द्रव्य को सिद्ध करने वाला कौन है? पर्याय ही है। तो पर्याय ही भ्रष्ट होगा तो द्रव्य का सिद्धि कौन करेगा? पर्याय स्वयं भ्रष्ट होगी। इसीलिए बताया, भारतीय नारी के ऊपर घटा के बताया, जो पति को बेचकर घर लेती है, ध्रुव द्रव्य का अनादर करके पुण्य करती है, वो जब तक पुण्य का फल भोगती है, जब तक, कितने दिन तक, कितने पुण्य का फल है ही क्या? मोक्ष शास्त्र परिशिष्ट में राम जी भाई ने 5 परिशिष्ट लिखा, ऐसा बताया था ना परसों। परिशिष्ट में बताया उन्होंने, राम जी भाई ने मोक्ष शास्त्र के परिशिष्ट में बताया, इस जीव ने कथनचित, कभी तो कदाचित पुण्य परिणाम किया हो तो उसका फल पुद्गल में चला जाएगा। जीव को क्या मिलता है? उत्तम शरीर मिलेगा, शरीर जीव का है, संपदा मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। कदाचित इस जीव ने पुण्य परिणाम किया हो कभी तो उसका फल पुद्गल में चला जाएगा। ग्रंथ खोलकर देखना, स्वाध्याय करना। दीक्षा कौन लेता है और कौन देता है? गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु को देखकर वे सब सीख जाते हैं। देख कर गुरु के सानिध्य में रहकर सब सीख जाते हैं। सीख जाने पर गुरु जैसा हो जाते हैं, वैसा ही है ना। जिनके सानिध्य में रहते हैं उन जैसे हमारे में भी होता है या नहीं परिवर्तन? कन्नड़ में सर्वज्ञ नाम का कवि हुआ है। कवि, जैन नहीं, अजैन कवि। सज्जनर संगवधु ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವಧು ಬತ್ಸಲೇನ ರೊಚ್ಚಿನಂತೆ ಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ। सज्जनों के संग मधुर मधुर अमृत पान जैसा है। दुर्जन के संग बच्चन नानी घर, बाथरूम के कोलचे, किचन। सदैव जिन शास्त्र और जिन मुनि के पवित्र चित्रण हमारे ज्ञान के पटल पर रहना चाहिए। जिन मुनि और जिन श्रुत, श्रुत का अभ्यास निरंतर चाहिए। कौन किसे क्या देगा? हमें दीक्षा देने के लिए हमारा दीक्षा, हमारा निवृत्ति, हमारा शुद्धि उनके पास है क्या? बस उनके सानिध्य। जैन दर्शन में या वस्तु दर्शन में सब सहज है, स्वहज है, स्वतंत्र है, स्वयं किए तो है। दूसरों से मिलने जैसा कोई मूल वस्तु धर्म में ही नहीं है। इसीलिए पहले कहाँ शुरू हुआ था? सदाचार के बिना। सदाचार में क्या आते हैं? 5 प्रकार के अभक्ष का तो त्याग, रात्रि भोजन त्याग, बिना छना जल का
प्रयोग, त्याग, देव दर्शन और स्वाध्याय। स्वाध्याय कहो या जिनागम का पठन कहो। इतना होने के बाद श्रावकाचार, किसी एक श्रावकाचार में प्रश्न है, ये खाना पीना ये सब शरीर के कार्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो मोक्ष होता है ना, तो इसको क्यों बता रहे हैं? इसीलिए उधर उत्तर दिया, ये नहीं रहेंगे तो सम्यक दर्शन का विषय समझ में ही नहीं आएगा। क्या हुआ है, एक बात, हानि क्या हुआ है हमारे यहाँ, संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म दो विभाग में बट गया है। एक तो क्रियाकांड विभाग एक समय सार विभाग है ना, हो गया। गुरुदेव की देन तो अपूर्व है, लेकिन उपयोग कितना हो रहा है? जो समय सार का वांचन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके यहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। खान पान के लिए रात्रि भी खाते हैं, रात्रि भी जलपान करते हैं। हम नाम तो लेकर नहीं बताएंगे, लेकिन चलते हैं। हमारे यहाँ पिताजी के सामने ही चर्चा हुआ, रात को पानी लेते हैं, कैसे तत्व ज्ञान मिलेगा, ऐसे हमारे यहाँ चर्चा चल रहा था। अनेकों साधर्मी जमा हुए थे। तब एक व्यक्ति ने बोला, उधर तो वैसा ही वातावरण है, रात को पानी लिए बिना चलता ही नहीं। तो वैसे परिस्थिति में आप धर्म क्या बताएंगे? गंभीर बात है पंडित जी, दुखद भी बात है। जो सब आचरण करते हैं, एक दो विभाग बताए ना मैंने, एक तो आत्मा, आश्रव, पुद्गल, सप्त तत्व, नव पदार्थ, पंचास्तिकाय सब अभ्यास करते हैं, दान देते हैं, सभी करते हैं, लेकिन आचरण के विभाग में कुछ नहीं है। और एक विभाग ऐसा है, सिर्फ आचरण किस लिए कर रहे हैं वे उन्हें ही पता नहीं। रात को पानी नहीं पिएंगे, पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, व्रत का भंग नहीं करेंगे, हम व्रत पाल रहे हैं, सोले कर रहे हैं, ऐसे सब हट करेंगे। लेकिन जीव माने क्या? जीव का भाव से बंध होता है, ज्ञान से ही बंध का छेदन हो सकता है, ये किसी भी बात का पता नहीं। और एक पक्ष को सब पता है, लेकिन कुछ भी आचरण नहीं। कौन अच्छा है इसमें? इनमें कौन अच्छा है? धर्म लाभ किसे होगा? जरा बात गंभीर है। पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय है, यथेच्छ शरीर की सब व्यवस्था कर रहे हैं, करना पड़ता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आगम का वाक्य है ना। शरीर सुरक्षित रहेगा तभी तो धर्म होगा, ऐसा है। आत्मा के धर्म का और शरीर का रहने का क्या संबंध है? संपूर्ण भारत में धर्म की इसी तरह अवनति हो रही है, इसी तरह। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में यथा योग्यपना, पढ़ने पढ़ाने के लिए जो योग्यता चाहिए उतना तो योग्यता सहज ही आना चाहिए ना, सहज ही आना चाहिए ना। सभी ऐसे है ऐसा नहीं बताती,
लेकिन ऐसा हो रहा है, चर्चा हो रहे हैं। सिर्फ कपड़े छोड़ने से धर्म होता है? नहीं। सिर्फ आत्मा आत्मा बोलने से धर्म होता है? तो क्या करना चाहिए? क्या करना था? जितना समझता है उसके 1/शतांश भाग तो आचरण में आना चाहिए ना, नहीं तो समझ में आया ही नहीं, ऐसे ही सिद्ध होगा ना। जितना समझता है उसमें से 1/शतांश भाग आचरण में आना चाहिए। आचरण किसे कहते हैं? सब छोड़ छाड़ देना आचरण है? नहीं। परिणाम में कषायों का मंद होना, विषयासक्ति मंद होना, परस्पर में राग कम होना, द्वेष का तो सवाल ही नहीं, राग कम होना। राग अलग है, स्नेह वात्सल्य अलग है। राग अलग बात है, वात्सल्य अलग बात है। वात्सल्य धर्म का अंग है, राग बंध का आधार है। समझ रहे हैं? राग बंध का आधार है, वात्सल्य धर्म का अंग है। सम्यक दर्शन का अंग है ना, वात्सल्य अंग है। परस्पर में वात्सल्य होना सभी जीवों के लिए। देखिए, घटना ऐसी होती है, मुनिराज बैठे हुए हैं, आंख खोलकर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति आता है, प्रभु आपके यहाँ पानी है, कमंडल है ना, उसे मालूम है पानी का ही साधन है, ऐसे उसे दिख रहा है। प्रभु मेरा जान निकल जा रहा है, थोड़ा पानी पिलाइए। मुनिराज पिलाएंगे? इतने कठोर रहते हैं हमारे मुनिराज। इसका मर्म किसे समझ में आ जाएगा, उसे राग और वात्सल्य के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। उस जीव के ऊपर वात्सल्य भाव है या नहीं? बार बार मांगेगा पानी, बाद में चुप रहेगा। वो चुप रहने के बाद उसमें योग्यता दिखाई दे तो मुनिराज 2 वचन रूपी अमृत पान कराएंगे। पानी तो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, पानी देंगे तो वो कमंडल नहीं रहेगा। पानी देंगे तो वाटर बैग हो जाएगा। वो आपके बच्चों के पास रहता है ना वाटर बैग, अब बोतल है सबके पास, मध्य ही पी रहे हैं सब लोग, वाटर बैग नहीं किसी के पास है। ग्लास से कोई नहीं पानी पीता, सब बोतल से ही पानी पीना चाहते हैं। किसी कीमत पर पानी कमंडलों में से पानी नहीं पिलाएंगे। और थका हारा बैठ गया तो अपने आप उसका वो तृषा जो है कम हो जाएगा। पानी पीने से थोड़ी कम होता है तृषा बाधा। तब उसके मुखमंडल पर थोड़ा शांति दिख गया तो मुनिराज अमृत पान कराएंगे, वचन रूपी अमृत पान कराएंगे। कमंडलों में से पानी दे देंगे तो कमंडलों नहीं रहेगा। सोचना, वो परिग्रह पानी की टंकी रख जाएगा ना। वो कमंडलों में कितने पवित्रता है कमंडलु शब्द में। पिछी है, पिछी से स्थान को परिमार्जन करते हैं, बैठने के स्थान, कमंडल रखने के स्थान, एकाध शास्त्र रहेंगे तो शास्त्र रखने के स्थान परिमार्जन करते हैं। बैठने के स्थान परिमार्जन करते हुए जीव को क्या कर रहे हैं?
थोड़ा बाजू हटा रहे हैं सूक्ष्म जीवों को, साथ साथ सूक्ष्म विकल्प आ गया, ये तो एक कंकर है, वो भी जाने दो। ऐसा किया तो पीछे नहीं रहेगा, वो झाड़ू बन जाएगा। शुचिय साधन दा कमंडल उचित शास्त्र ज्ञान साधन जीव रक्षणे सलवहि युषे पिंछी है, जीव रक्षण के लिए पीछे है, शुद्धि के लिए कमंडल है। वो पानी प्रासुख ही है उसमें, लेकिन नहीं पिला सकते, तृषातुर को पानी नहीं पिला सकते। और अपने कमंडलों में पानी नहीं रहेगा, शौच के लिए पानी चाहिए, तो क्या करते हैं, बहता पानी ले लेंगे। पीने के लिए नहीं, शुद्धि के लिए। हर एक का अपने अपने योग्य योग्य उपयोग होना चाहिए। मुनि जीवन में तो ऐसे है, गृहस्थ जीवन में भी किसको आश्रय देना, कितना सहाय करना, सब विवेक चाहिए ना भाई। विवेक के बिना धनादि के लिए उदारपना रखेंगे तो भी पाप ही होगा। विवेक के बिना कोई भी वस्तु उदारता से दे देंगे तो पाप ही होगा। आजकल तो ऐसा है, भिक्षुक भी, आजकल तो भिक्षुक देखने को भी नहीं मिलता। 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, भिक्षुक कहाँ है अभी, भिक्षुक भी नहीं है। भिक्षुक भी भिक्षा, भिक्षुक के लिए भी भिक्षा देना हो तो सोच कर देना पड़ता है। बन गए ना, कैसे बन गए, कैसे बन गए, ये सब पंचम काल की महिमा है। सब पंचम, चंद्रगुप्त के स्वप्न में क्या आया था, एक बार खोल कर देखना, 16 स्वप्न देखे चंद्रगुप्त, भरत चक्रवर्ती भी देखे थे। इसका फल अब नहीं, पंचम काल में आएगा ऐसा, तभी वृषभसेन गणाग्रणी ने बताया था। ये पंचम काल की महिमा है। 10 साल पीछे जाकर देखेंगे तो कोई भिक्षुक खाना वगैरह नहीं लेते थे, पैसे मांगते थे। क्यों? उस पैसे से मद्यपान करते थे। कितने ही पकड़े गए, कितने ही सज्जन लोग देख लिया वो भिक्षुक ऐसे करते हुए। व्हील चेयर पर बैठेगा और छोड़ छाड़ के चला जाएगा। वो रोड के ऊपर ऐसा हाथ रख कर जाते हैं, किसी एक गाड़ी रहते हैं उसमें जाएगा, अंधे का नाटक करेगा तो वो दान हो जाएगा। धर्म के हिसाब में तो नहीं आएगा, वो बात अलग, करुणा दान हो जाएगा, करुणा दान हो जाए। करुणा दान भी किसे, देखिए बात ऐसा है, हम पंचम काल के धनिक लोग ही ऐसे हैं, पात्र दान देने की भाग्य ही नहीं, ऐसी दरिद्र है, धनिक होते हुए दरिद्र है। पात्र कहाँ मिलते हैं? इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार में सदा सुखदास जी ने बताया, चतुर्थ काल में पात्र तो बहुत मिलते थे, पात्र तो बहुत थे, लेकिन कथनचित कभी किसी विरला भाग्यशाली पुरुष को पात्रदान का योग बनता था। पात्र तो बहुत थे, 24,000 मुनिराज का संघ था ना पंचम काल के प्रारंभ में। भद्रबाहु के 24,000, 12,000 तो पहले ही भ्रष्ट हो गए, छोड़कर आए दक्षिण के यहाँ भद्रबाहु, 12,000 भ्रष्ट, कैसे कैसे भ्रष्ट हो गए।
मालूम है ना, सबको पता पता है कैसे भ्रष्ट हो गए। उधर के शेठ लोग बोले उत्तर के 12 साल क्यों, 24 साल भी हाँ अकाल पड़ा तो भी हम आपको संभाल सकते हैं, उतने ऐश्वर्य है हमारे पास। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ? मुनिराज आहार करके आए तो उनके पेट फाड़कर आहार निकाल कर खा लिया मनुष्यों ने। तो श्रावकों ने बताया आप रात में आ जाइए, तो रात में आना शुरू किया मुनियों ने आहार के लिए। रात में आना शुरू किया तो एक शेठ के यहाँ शेठ की बहू गर्भिणी थी और नग्न दिगंबर वेश को देखकर घबरा गई और उनकी गर्भपात हो गई। तब शेठ श्रीमंतों ने बताया आप कपड़े पहन के आओ, तो कपड़े पहनना शुरू कर। क्या क्या हुआ, धर्म कैसे भ्रष्ट होता है। और परसों आपने, हमारे ही बहन ने आपको प्रश्न पूछ रही सूतक पातक के बारे में। सूतक पातक में क्या छोड़ा जाता है? सिर्फ देव दर्शन और ग्रंथ नहीं छोड़ना, स्वाध्याय नहीं करना, देव दर्शन नहीं करना, बाकी सब तो चलता ही रहता है ना। मृष्टान भी बनते हैं, खाते भी है, टीवी भी देखते हैं, मजा मौज भी करते हैं, कहाँ कहाँ का चर्चा भी करते हैं, लगना शादी ब्याह का भी चर्चा करते हैं, कपड़े का भी चर्चा, गहने का भी चर्चा होती है या नहीं? दो है संयोग, दो, एक वियोग में सब परिवार एकत्रित होता है, एक शादी में होती है राग की कथा, लेकिन वियोग के जो सन्निवेश रहता है तब वैराग्य की कथा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा होता है, 1 घंटा स्वाध्याय रहता है उनके यहाँ। जिनके घर में वियोग हुआ है उनके घर में स्वाध्याय रहते हैं, सभी स्वाध्यायी लोग आकर स्वाध्याय कराते हैं। सूतक पातक क्या है? सिर्फ धर्म के आयतन से दूर रहने की निमित्त है। निमित्त ने क्या बोलते हैं? कारण बताते हैं, वो कारण में कुछ दम नहीं है। भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ समाचार आए थे ना, चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई, पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई, उधर केवल ज्ञान हो गया आदिदेव को। तो रुद्धि में कैसे गया वो? रुद्धि थी ना, घर में रुद्धि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रुद्धि बोलते हैं। तब समूह शरण में कैसे चला गया? 96,000 पत्नियां, हर रोज तो रुद्धि आते ही रहेंगे। तो उसके लिए भी कहते हैं महापुरुषों के लिए नहीं रहते। तो हम क्यों हीन पुरुष है? हीन क्यों है? हमारे में धर्म नहीं इसलिए हीन है ना, सीधा अर्थ है हमारे में धर्म नहीं इसलिए हीन है। वो महापुरुष कैसे? वो वही भव में मोक्ष चले गए। महापुरुष माने धर्मी लोग, धर्मात्मा जी। तो हम क्यों हीन है? छोड़ेंगे तो और हीन हो जाएंगे या धर्मात्मा महा हो जाएंगे? क्या है? सबके बारे में सोचने के संज्ञी पंचेंद्रिय मतलब सोचना, हर एक काम हिताहित के बारे में सोचना। एक काम जो कर रहा हूं मैं, उस काम का नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम क्या रहेगा, उस परिणाम का फल क्या होगा, संयोगी जीवों का परिणाम क्या होगा, उनको क्या फल मिलेगा। दान देते समय भी बहुत सोचना पड़ता है, सोचे बिना। इधर ही बताया है भाई, आपका बात का मैं खंडन नहीं कर रही, उनका तो मैं पोषण करने वाली हूँ। इधर ही लिखा है अपात्र को दान देने से अच्छा कुएं में डाल दो अपने धन। लिखा है पढ़ना चाहते हो तो पढ़वाऊंगी,
पेज नंबर बताऊंगी, अभी पढ़ो, समय होगा नहीं। रत्नकर्ण श्रावकाधिकार में ये है ये नहीं है ऐसी बात नहीं है, सब कुछ भावना अधिकार में है ये बात। सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। कुपात्र कौन है? सब जिनेंद्र भगवान ने जैसे बताया वैसे सभी बाह्य क्रिया करते हैं। कुपात्र का बहुत भयानक लक्षण है। सभी हितमित भाषण है, सरस निरस भोजन में समभाव है, मौन रहते हैं, इंद्रियों के विषयों का सर्वथा त्याग किए हुए है, वनखंड में वास करते हैं, सब इतना पैराग्राफ है। आत्मज्ञान से शून्य है, आत्मानुभव से शून्य है, वे सब कुपात्र है, सभी बताया। और एक लाइन अंत में आत्मा अनुभव से शून्य है, आत्म अनुभव से रहित है, वे सब अपात्र है। अपात्ರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತರೊಳಗೆ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಪಾಷಾಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹಾಗಿದೆ। पाषाण के ऊपर बीज, कहियाद सोरे गुरुड़ियल्ले हालु हाकिर, कही लौकी है ना, उसमें दूध रखना, सोरे गुरुड़े, लौकी कहीं कड़वा भी रहता है, और सूखने के बाद उसका एक पात्र बन जाता है ना, उसमें दूध रखेंगे तो वो फट जाएगा ना। ಸಮಾನವಿದೆ। ಘೋರ ಕಾನನಮೇ ಕಳ್ಳನ ಕೈಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ। घोर जंगल में चोर के हाथों अपना धन सौंप देना, अपात्र को दान देना। तಮ್ಮ जीवन वृद्धिಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಷಭಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಸಮಾನವಿದೆ। जीवंत रहने के लिए, जीवित रहने के लिए विष पान करना, विष भक्षण करना, रोग दूर करने के लिए कुपथ्य सेवन जैसा है। हाविगे हाಲು ಕುಡಿಸುವ सर्प को दूध पिलाने जैसा है। तಮ್ಮ धनವನ್ನು, अपने धन को हाड़ुभावी में, हाड़ुभावी अंधा कुएं में डालो, ಆದರೆ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬಾರದು। ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದಾನವಂತೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಸಮಾನವಿದೆ। घर में विषवृक्ष बेलेसुವುದರ, विषवृक्ष का वृद्धि करना ऐसा है। बहुत कुछ बताया है, आप पढ़ लेना, भावना अधिकार पढ़ लेना, सब मिल जाएगा आपको। समय हुआ। भद्रभाव स्वामी के टाइम से अपनी श्वेतांबर आमना शुरू। हाँ, श्वेतांबर आमना, वही तो स्थूल भद्र हो गए, शिथिल हो गए, स्थूल भद्र संघ का नायक भी रह गया वो स्थूल भद्र। किस लोभ से रह गए, गुरु के साथ क्या कारण से नहीं आया, सब पंचम काल की महिमा बता। जिन धर्म में एक छत्राधिपति जिन धर्म रहते हुए भी अपात्र जीवों ने जिन धर्मों का छत्र छाया छोड़कर विपक्ष का रचना कर दिया, क्या करें, बहुत दयनीय है वो स्थिति। दान देने के वक्त लगता है क्या अपने कम उसमें अपने से में वो कम हो जाएगा। और जब बच्चे के लिए जो अपना कुछ धर्म भी नहीं पालते हैं, अपना जैन धर्म समझने को भी तैयार नहीं है, हाँ। और उनके लिए अपन सब इकट्ठा करते तो उसका फल क्या है? उसका फल आप तो मर जाएंगे, लेकिन सब आप तो मर जाएंगे नहीं, हम भी नरक चले जाएंगे, साथ साथ उन्हें भी ले जाएंगे, बच्चों को, कुपुत्रों को, कुपुत्र। इसमें भी और भी एक श्लोक है इसमें रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, सुपुत्र होगा तो अपने आप कमा कर खाएगा, कुपुत्र होगा तो तेरा कमाया हुआ सब कमाकर व्यसनों में कमाकर दुर्गति चला जाएगा। इसलिए कुपुत्र होने पर भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, सुपुत्र होने पर भी धन संचय करने की आवश्यकता। और एक बात है, हर एक जीव अपने अपने भाग्य साथ में लेकर आता है, हमारा भरोसे नहीं आते कोई भी संतान।
अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं। इसलिए संतान की व्यामोह छोड़कर धर्म के लिए दान देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन धर्म के लिए दान देने के लिए स्वयं धर्मी को पहचानना, अपने अंदर धर्मी आत्मा को पहचानना और धर्मी आत्मा के अनुसरण करते करते मोह को कम करना। मोह कम किए नहीं तो दान दिया तो उसमें कुछ लाभ तो नहीं, धन भी चला गया और लाभ भी नहीं। दान दिया अभिमान किया, सिद्ध पूजन में आता है डॉक्टर साहब के। अभिमान ठान। हाँ, दान दिया अभिमान किया। क्या काम है वैसा दान का? दान कैसे देना? अपने मोह कम होना चाहिए। अपने मोह कम होकर दान दिया तो उस दान के धन का भी सदुपयोग हो सकता है, होता है। धन की योग्यता कैसा है वैसा होता है। शास्त्र के लिए दान देने के लिए हमारे पिताजी के यहाँ आते थे, लोग आते थे, ग्रामीण भागों से आते थे और लीजिए हम शास्त्र के लिए दान देना चाहते। पिताजी बोलते थे अब तो कुछ काम नहीं चल रहा है ग्रंथ का, प्रत्यक्ष ग्रंथ का प्रेस में काम चल रहा हो तो मैं ले सकता था, अब नहीं ले सकता। हम बाद में हमें कैसे चलेगा, आपका काम कब चालू होता है वैसे बोला लोगों ने, तो तुम पता करते रहना चाहिए दान देना हो तो। हमारा भाव कल दान देने का नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? हम दान नहीं, हम दान देना अब चाहते हैं ना लोग। तुम कब दान देना चाहते हो तब दान देने के लिए वो भिक्षुक नहीं है। दान देने के लिए देने वाले की पात्रता और योग चाहिए। हमारे घर का बात अलग है भाई, जरा अलग है। हमारे पिताजी का बात थोड़ा अलग है। सब जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब जगह आवश्यकता है, ये बात अलग है। लेकिन क्यों आवश्यकता अपने सिर पर लिया आपने? ये भी तो एक बात है ना, सोचने वाली बात। दोषारोपण नहीं कर रहे। आप तो सुबह बताया मैं निवृत्त हुआ हूँ, निवृत्त होने के बाद प्रवृत्ति किस काम की? निवृत्ति किससे हुए है? धन संचय नहीं करेंगे लेकिन धन खर्च तो करेंगे ना, दूसरों का धन उत्तम कार्य के लिए। अरे आत्म कल्याण से उत्तम कौन सा कार्य है? निवृत्तिमय जीवन कहाँ होना चाहिए? ये सब काम बंद कर दीजिए ऐसा मैं नहीं बताते, आपने चालू नहीं किया, आपकी भावना है, स्वयं वो चल रहा है, पैसे स्वयं आ रहा है, देने वाले की भावना है, पैसे स्वतंत्र है, आ रहे हैं, आपकी जो विचार है वो निमित्त है, लेकिन आत्म कल्याण का कार्य उधर नहीं बन रहा है। होगा, धर्म का शिक्षण होगा, सदाचार का शिक्षण होगा, सन्मार्ग का शिक्षण होगा, लेकिन वो जीवन पर्यंत और शाश्वत सुख के लिए उपयोग कितने जीव करेंगे? दोष नहीं बता रही, दोष नहीं, लेकिन एक बार अवश्य सोचना, आप सोचकर अपने काम करेंगे और साथ में एक काम होता रहेगा, इससे भी अच्छा होगा वो काम, आपका भार कम हो जाएगा, कर्तृत्व बुद्धि कम हो जाएगा। कर्तृत्व बुद्धि कम होने के बाद आपका सुंदर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आपका मार्ग देखकर अन्य लोगों का भी मोह कम हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, बच्चे सीख जाएंगे, सब हो जाएगा। श्री जिनवानी ज्ञानदनी लोकालोक उतिडियुವುದು आ